को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराता है, वहाँ पहुँचाता है। तो इस खून के उसमें एक मतलब अणु से बने हैं और उसमें कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ है और वो आयरन से बनता है। किससे बनता है? लोहे से, है ना। अगर काम करता है ऑक्सीजन पहुँचाने, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन जो पहुँचनी थी सारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, ये नहीं जाती, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पा रही है। जो आपका सिस्टम है वो इनइफेक्टिव, मतलब कि अच्छा नहीं रहा, है ना। हाँ हाँ, अभी तक जो मैडम ने बताया बच्चों आपको समझ में आया कुछ? क्या समझ में ये आया? बताओ, ये जानना बड़ा जरूरी है। हम जो बोल रहे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है? पहले हम इसके बात करते हैं। सांस लेते हैं वो सब खून में ही, एनर्जी कहाँ से आती है? ब्लड से। ये नहीं कि तुमने रोटी खाई, रोटी एनर्जी है, रोटी गोश्त खून ही बढ़ाता है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आयरन, हीमोग्लोबिन। आयरन जरूरी है। आजकल क्या खाते हैं तुम लोग? चाउमीन, एडमिशन के लिए जिनसे करवाना वो तो लेडी है, मैरिड, मंजू है, अंजू बोलो। सुमैया कौन है? सुमैया कौन था? सुमैया अपना पर्चा रख लो अपने पास बेटा। राधिका का समझ गए? बिस्किट्स ले लो, ये लो। राखी अच्छे से Hello everyone, I am Dr. Smita Jain. I am the Secretary of Mission Pink Health. It's a wing of Indian Medical Association West Ghaziabad. This Mission Pink Health is dedicated towards the betterment of the women and especially the adolescent girl. Today is 28th of May. It is the World Menstrual Hygiene Day. And on this important day, we are here today at Khushi Foundation located at Vaishali, Ghaziabad, who are working towards the betterment of the underprivileged girls and women. And we, the team of doctors consisting of gynecologists and other specialists, conducted a health camp which focused towards creating an awareness about the menstrual health and hygiene among the girls and the women. We inform them about the menstrual cycle, the taboos that are associated, and
towards the menstrual hygiene measures that they should adopt to prevent sexually transmitted disease and reproductive health can be improved. We provided them information regarding sanitary pads. Menstrual cups also have been instigated that they can be a good option as it is eco-friendly towards the disposal of the sanitary pads. And if any menstrual health issue or some menstrual complaints like heavy flow or something like that, pain during period is there, that is also being addressed, and they were being prescribed certain medications. We distributed sanitary pads and some menstrual hygiene cleanser also, and we also tested the women for their hemoglobin estimation, and those who were found to be anemic, less than 12 gram of hemoglobin, were given iron supplements along with deworming tablets. This World Menstrual Day was celebrated in a very nice way at Khushi Foundation. We were so obliged to various doctors who come here and did the health checkup, and also to Miss Nandini, who helped us to organize this health camp. And a lot of women and adolescent girls were there in this camp who can be benefited after this session about the menstrual health. This was a very well organized camp where we can spread the awareness about the menstrual health and hygiene and the various options that can be used by these women towards a better eco-friendly environment. Thank you very much, and thank you Khushi Foundation for organizing such a good camp and doing such a noble work towards the underprivileged women and girls. Thank you. मैं डॉक्टर सीमा प्रकाश हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड गुरु तेग बहादुर में एसोसिएटेड हूँ, और पिछले कई वर्षों से हम मिशन पिंक हेल्थ के थ्रू काम कर रहे हैं। ये जो खुशी फाउंडेशन है, ये सेक्टर 4 वैशाली में हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ आके इन बच्चियों से बात करते हैं। यहाँ बहुत सारी अंडर प्रिविलेज क्लास की बच्चियाँ आती हैं। आज जो स्पेशल डे है वो है 28 मई, इट इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो आज हमने स्पेसिफ़िकली यहाँ पे जो इनको अवेयरनेस कैंप की तरह से हमने लगाया था, और इसमें यंग एडल्ट्स एंड गर्ल्स को हम लोगों ने बताया कि मेंस्ट्रुएशन में उनको किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है, हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है, और जो हमारा मिशन पिंक हेल्थ है उसके थ्रू हम इन्हें अनीमिया और अनीमिया से रिलेटेड इनको जितनी भी क्वेरीज़ होती हैं वो बताते हैं। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग बच्चियों के साथ साथ उनकी मदर्स की भी की जाती है। खुशी फाउंडेशन जो कि मिसेज़ नंदिनी चलाती हैं, उनका बहुत अच्छा मैंने एक रुख देखा है कि वो बहुत मन से काम करती हैं, और इसीलिए हमारा भी बहुत मन होता है कि हम उनके साथ जुड़े रहें। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि उन्होंने 1.5 लाख पैड बैंक के थ्रू पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, विच इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट एंड इट नीड्स अपलॉड बाय एवरीवन। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें उनका अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से वो इन लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। इसीलिए हमारा भी मन होता है कि हम इनके साथ जुड़े रहें। मिशन पिंक हेल्थ की मैं बताना चाहूँगी कि मैं पैट्रन हूँ मिशन पिंक हेल्थ की, और IMA वेस्ट गाज़ियाबाद जो है हमारी जो मेन बॉडी है वो हमें काफ़ी हेल्प करता है इस तरीके की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करने में। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक और सोशल नेटवर्किंग ग्रुप है जो कि डॉक्टर्स जिसमें कि डोनेशंस देते हैं, और उसके थ्रू हम ये सारे काम कर पाते हैं। और इन कामों में हमारे बहुत सारे जो IMA के डॉक्टर्स हैं वो सम्मिलित हैं, जो यहाँ आए हैं और जो यहाँ नहीं भी आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारा जो ये मिशन पिंक हेल्थ का जो ग्रुप है, इसको भी मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ की। खुशी फाउंडेशन के लिए स्पेशल धन्यवाद। थैंक यू सो मच।